Good morning everyone. So today we are making one of the science project, that is a natural sanitizer. As you know, it's a COVID-19 time and we are using the alcohol based sanitizer. Basically it has been used for the professional area like doctors हैं या official workers जो हैं वो रोज आ रहे जा रहे हैं तो उनको क्या है alcohol based sanitizer की ज़रूरत है क्योंकि वो बाहर के environment से ज़्यादा exposed हो रहे हैं. पर हम घर पे रह रहे हैं, हम इतनी चीज़ों से exposed नहीं है तो हम अपनी स्किन की itching और irritation को prevent करने के लिए हम घर में एक natural sanitizer बना सकते हैं जो उतना ही इफेक्टिव है जितना अल्कोहल बेस्ड है, लेकिन उसमें अल्कोहल यूज़ नहीं किया गया है. तो आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे फंगस है, बैक्टीरिया है, तो उनके ऊपर वो 99% उसकी फाइटिंग कैपेसिटी होती है इस नेचुरल सैनिटाइजर की. इसलिए हमने सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं. सो नाउ लेट मी स्टार्ट दिस मेथड ऑफ मेकिंग दिस नेचुरल सैनिटाइजर एट अवर होम. सो हियर वी नीड दिस पैन and we will ignite the flame. Now in this pan, I am using this distilled water. You can use your tap water also. 1 glass of tap water I am pouring in this pan. As you have seen, I have poured it. Now the other thing we need for this natural sanitizer is this neem leaves. You can see these are the neem leaves. Next is the basil. It is called Indian basil or tulsi. जो common use हम name use करते हैं. This is tulsi. Then this is the giloy. Some extract of giloy I have taken. You can see at home or at nearby places this kind of giloy leaves you can find at nearby your home. So I had taken the stem part of this giloy. Okay. Now next we need the extract of this aloe vera. I had taken this one leaf of aloe vera and take out the extract of this. I show you that this is the leaf of aloe vera which I had cut it from its edges, remove its front part and take it out its peel. This extract I had taken out. Okay. With the help of knife you can cut and take it out. Now this is the powdered alum जिसको फिटकरी भी बोलते हैं. ये सॉलिड इस तरह से आपको मार्केट में अवेलेबल इजीली होगी. इसको मैंने with the help of this mortar I had make a fine powder of it. And the last ingredient we are using is this kapoor, that is also called as camphor. और वो इस तरह के आपको पैकेट में मार्केट में अवेलेबल होगा या घर में पूजा के सामान में भी आपको मिल जाएगा. ठीक है. Now let me start over this. Now see, you can see the water has started boiling. Now I am pouring the leaves. These are almost 150 grams of leaf which I am pouring in this. Now you can see I had put this neem leaf in this. Now I am taking this glass rod. ये ग्लास की रॉड है बिकॉज ये मैं एक केमिस्ट्री लैब पे बना रही हूँ पूरा सैनिटाइजर. आप इसको अपने घर के किचन में बना सकते हो. एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ बी कॉशियस दैट take the company of some elder at your home and make this sanitizer. Don't make it alone because you are using a burner and it may cause a burn to your body parts. So don't use it alone. Take the help of the elders at your home. ठीक है. Now you can see that these neem leaves are boiling in this water. आप स्पून ले सकते हो और उससे स्टर कर सकते हो इसको. ओके. एंड नाउ वी विल लेट इट स्टर फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स. और यू कैन सी कि ये जो वाटर है इसका 1/4 पार्ट इवेपोरेट हो चुका है. देन यू कैन पुट द अदर इंग्रेडिएंट्स इन दिस. नाउ यू कैन सी दैट दिस नीम लीव्स आर एटलीस्ट 40% बॉइल्ड इन दिस वाटर. नाउ आई एम पोरिंग दिस होली बेसिल जिसको तुलसी बोलते हैं इन दिस प्रिपरेशन. ठीक है. ये जो तुलसी है इसकी लीव्स को हम डाल देंगे इस पैन में और इस ग्लास रॉड से ही स्टिर करेंगे. एंड आफ्टर दिस वी विल यूज़ दिस गिलॉय एंड पोर इट इन दिस. इसको भी गिलॉय को भी डाल देंगे. गिलॉय का स्टेम का जो हमने थोड़ा सा कट करके लिया हुआ है एक्सट्रैक्ट उसको डाल रहे हैं हम इसमें. स्टूडेंट अगेन आई एम सेइंग यू डोंट डू इट अगेन. इसको अकेले नहीं करना है. अपने घर में अपनी मदर, अपने फादर या एल्डर सिस्टर, कोई भी जो एल्डर पर्सन है उनके साथ में, ब्रदर उनके साथ में करना है. क्योंकि आप जो है बर्नर का वर्क कर रहे हो इसकी वजह से आपके क्लोथ्स या आपके हैंड जल सकते हैं और कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है इसकी वजह से. इसलिए ऐसा ना करें अकेले और किसी के साथ में ही करें. वन मोर थिंग, जब हम इन लीव्स को बॉईल कर रहे हैं उस टाइम पे हमको इस कम्प्लीटली बॉईल करेंगे. और अब ये जो बॉईल हो जाएगी उसके बाद हम जितना ग्रीन पार्ट्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं, एलोए एक्सट्रैक्ट है,
और गिलॉय है, ये हम बर्निंग के टाइम पे डाल सकते हैं इसको, जब हमने गैस पे रखा हुआ है। जब हम इसको नीचे उतारेंगे उसके बाद हम एलम और कैम्फर यूज़ करेंगे, क्योंकि कैम्फर हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। आपने भी देखा है कि घर में जब आप इसको मैच स्टिक से जलाते हो तो ये फटाफट से जल जाता है। तो इसलिए इसको बर्नर पे नहीं डालना है बिल्कुल भी, प्लीज़ क्लियर, बर्नर पे इसको नहीं डालना है। जब हम इसको नीचे उतार देंगे बर्नर को, उसके बाद में आप इसको डालोगे। तो लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा जो हम बर्नर पे डालेंगे, वो है एलोए एक्सट्रैक्ट। आप देख सकते हो घर पे इजीली निकल जाएगा ये। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हमने एलोवेरा डाल दिया है और यू कैन सी कि अब ये बॉईल हो रहा है वाटर। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको बॉईल करना है अच्छे से। और ये सारा एक्सट्रैक्ट जो है लीव्स का इस वाटर में आ जाएगा 2 to 3 मिनट्स के अंदर में। तो इतना आपको इसको बॉईल करना है। ये हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है वाटर। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और पैन को बर्नर से नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब लास्ट में हमें क्या करना है, इसके अंदर में हम मिक्स करेंगे आलम को, जिसको फिटकरी बोलते हैं। इसमें एटलीस्ट 1 टीस्पून फिटकरी आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हम कैम्फर, जिसको कपूर बोलते हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस कपूर को आपको इस तरह का सॉलिड मिलेगा, पर आप इजीली इसको इस तरह से थोड़ा सा इसका पार्ट लेके और यूँ क्रश करके डाल सकते हैं डायरेक्टली भी। मैंने ऑलरेडी इसको क्रश किया हुआ है, तो मैं ये कपूर डाल रही हूँ। अब हम इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद एटलीस्ट 5 to 10 मिनट, जब तक ये ठंडा ना हो जाए, इसको हम यूँ छोड़ देंगे। नाउ क्लास, एज यू कैन सी दिस मिक्सचर इज़ रेडी। ठीक है, अब ये ठंडा होएगा तब हम इसको छान लेंगे एक स्ट्रेनर के अंदर में चलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये सब जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ। ये जो नीम लीफ जो हमने यूज़ की है, इट इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर अस बिकॉज इट इज़ हैविंग द एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। ओके, एंड ऑल्सो इट इज़ हैविंग अ वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। तो जब हम हैंड पे रब करते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। इसके अलावा ये स्किन को सॉफ्ट भी बनाता है और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी रखता है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर में यूज़ किया था तुलसी, और जो तुलसी है इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये तुलसी है। अब ये तुलसी के अंदर में क्या है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी माइक्रोबियल होती है, और ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। पर इम्यूनिटी को बूस्ट करती है जब आप खाते हो, जब आप यूज़ करते हो ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती है। नेक्स्ट हमने यूज़ किया था एलम, जिसको फिटकरी बोलते हैं। ये जो फिटकरी होती है डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। लाइक कहीं पे भी आपके लग गई है, खून आ रहा है, तो आप इसको अगर रब कर दोगे तो वहाँ पे खून रुक जाएगा और ये बैक्टीरिया को भी उस जगह पे नहीं आने देगी। तो ये एंटी बैक्टीरियल वर्क भी करती है। इसके अलावा कहीं स्किन में इरिटेशन हो रही है या इचिंग हो रही है तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ये जो वाटर के अंदर जो आप अल्कोहल यूज़ करो उसकी वजह से स्किन जो रफ़ हो जाती है, तो इसकी वजह से स्किन रफ़ नहीं होगी, डिहाइड्रेशन को ये प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट हमने यूज़ किया है कैम्फर, जिसको कपूर बोलते हैं। ये कपूर जो है कंजेशन जो होता है, तो अगर आपको डायरेक्टली कोई भी कोल्ड की प्रॉब्लम है तो आप इसको सूंघ भी सकते हो, नाक से स्मेल करोगे तो आपके क्या होगा कि कंजेशन रिलीव होगा। इसके अलावा अगेन ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको किल करते हैं। तो अगर आप हैंड पर रब कर रहे हो तो आपको एक अच्छा जो है इसका अच्छा एक स्मेल आएगा, और उसके अलावा आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी इसका प्रॉपर इफेक्ट रहेगा एंड ये इरिटेशन को भी प्रिवेंट करेगा और फंगल इन्फेक्शन को भी। नेक्स्ट हमने एलोवेरा यूज़ किया है, अगेन ये जो है स्किन को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज रखेगा। और लास्ट हमने यूज़ किया है ये गिलॉय। जो गिलॉय है इसके एडवांटेज आप सारे जानते हो कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रूट ऑफ इमॉर्टेलिटी। तो ये इचिंग और रैशेस इन पर अच्छा इफेक्ट शो करती है, और साथ ही अगेन एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे प्रॉपर्ली इफेक्ट करते हैं, इसलिए हमने इन सबको यूज़ किया है। अब ये ठंडा हो गया हमारा मिक्सचर जो सैनिटाइज़र का है। अब इसको, क्योंकि मैं केमिस्ट्री लैब में हूँ तो मैंने इसमें फ़िल्टर पेपर यूज़ किया है, फनल यूज़ किया और बीकर यूज़ किया है इसको स्ट्रेन करने के लिए, सीप करने के लिए। आप घर में स्ट्रेनर यूज़ कर सकते हो जिसको छलनी बोलते हैं, और उससे इसको सीप कर सकते हो। इस तरह से आप इसको छान लीजिएगा अपने घर पे छलनी से। हमारा ये जो सैनिटाइज़र है ये तैयार हो गया है। आपने देखा था मैंने पूरा एक बॉटल लिया था ये वाला, और ये 250 ml का बॉटल है। तो इसमें 250 ml वाटर था, जिसका हमारे पास में रिमेनिंग जो एक्सट्रैक्ट बचा है वो बचा है 60 ml। ठीक है, अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको किसी भी एक घर में बॉटल में फिल करके रख सकते हैं, और इसको आप अपने घर में 10 to 20 डेज से स्टोर करके फ्रिज में या बाहर भी रख सकते हैं, और उसके बाद कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, इस तरह से आपने यूज़ कर लीजिए. सो इट विल गिव यू द एज मच एज इफेक्ट एज अ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर. दिस इज अ नेचुरल सैनिटाइजर दैट यू कैन मेक एट योर होम.